Good morning, everyone. In previous class, we were studying about root mean square value of alternating current. See, in that particular video, I have told you that alternating for calculating the RMS value or the root mean square value of alternating current, we usually compare the heating effect for an alternating current and for equivalent direct current. So what was the definition? I am repeating it again. It is defined as that value of direct current which produces the same heating effect in a given resistor as is produced by the given alternating current when passed for the same time. Alright, and it is denoted by I RMS or I virtual. I have already explained you this one, and I effective. This all could be the representations. Alright, so firstly, see what is the RMS value. So for explanation, we can simply see we have two circuits having resistances R, alright, and here it is again resistance R, both having the same resistance. Here one DC supply is connected and here one alternating supply is connected, AC supply is connected. Here it is AC, here it is DC. Now what is the RMS value? It says for this much compare the heating effect. Consider this alternating current. If my alternating current is I, this I is actually the alternating current, so we will write it like this: I naught sin omega t, the instantaneous current, I naught sin omega t. This current I am flowing in this circuit. Alright, now as we know, heating effect for this will be I square RT if for T time we are calculating the heating effect. This much is the expression. Just because I am considering it for one complete cycle, for one complete साइकिल, ये तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे है. इट इज एच इज इक्वल्स टू फॉर 0 to t आई स्क्वायर आर डी टी. मान लीजिए बहुत छोटे टाइम पे डी टी रहा होता, डी एच हीट, क्योंकि अल्टरनेटिंग है इसलिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके अल्टरनेटिंग करंट है इसलिए डी टी टाइम में ये कांस्टेंट करंट रही होती आई, और उस टाइम में आई स्क्वायर आर डी टी रहा होता. मैंने 0 to t एक साइकिल में कंप्लीट कर लिया होता और उसको कैलकुलेट किया होती हीटिंग इफेक्ट एच. नाउ फॉर आरएमएस वैल्यू दैट सेम हीट will be must be produced here. Alright, so having the same resistance and for the same current, for the same time t. Alright, but this time current is constant. Here current was not constant, that's why I have taken dt time and calculated dh heating and now summed it over time period t. Now this time current is constant. Consider, मान लीजिए वो करंट जो सेम हीटिंग इफेक्ट H वैल्यू देती है, वो करंट इस बार हम उसको नाम दे रहे हैं I effective, IEFF. This I effective is giving the same heating effect in same time, so it can be written as I square effective RT. There is no problem in this expression. यही वो करंट है आई इफेक्टिव डीसी करंट की वो वैल्यू जो उतना ही हीटिंग इफेक्ट देती है उतने ही टाइम में जितने टाइम में एक अल्टरनेटिंग करंट एच हीट दे. ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम वहाँ डेफिनेशन में लिखते हैं. I have already calculated this
in previous class. Here I am again repeating it. So as आप ऐसे लिख सकते हैं, suppose an alternating current, suppose an alternating current I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी. एक ऑल्टरनेटिंग करंट है I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी. ये सेम हीटिंग इफेक्ट दे रही है, ठीक है ना. बी पास्ड थ्रू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस हाउ मच R, resistance capital R. This I am writing this thing what we have calculated. Then if for a small time dt current remains constant, मान लीजिए dt टाइम के लिए करंट कांस्टेंट रहती है, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम dt, टाइम dt कितनी होगी, मान लीजिए dh हीट होगी. देन dh इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, आई dt टाइम के लिए आई कांस्टेंट है तो आई हमने यूज़ कर लिया, लेकिन dt टाइम तक तो रहना नहीं है, हमें तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए लेना है, और एक कंप्लीट साइकिल में कैपिटल T टाइम लगता है, द टाइम पीरियड. इफ़ कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ alternating current, then obviously capital T is the one complete cycle. Then heat produced in one complete cycle will be how much, H, and it is for 0 to T summed over I square R dt. So this is the heat for one complete cycle. Now again come to this part. ये तो अभी इस वाले की बात हो गई. अब इस वाले के लिए तो इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. Now this much, let I effective, IEFF be the effective वैल्यू ऑफ AC. ध्यान दीजिए ये हम नाम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC लिख रहे हैं, बट ये आई इफेक्टिव है क्या, DC करंट की वो वैल्यू जो सेम इफेक्ट देती है जो अल्टरनेटिंग करंट AC दे रही है T टाइम में. आई इफेक्टिव विल बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC. देन हीट प्रोड्यूस्ड in time T. H is equals to I effective square R T, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट है. और ये कितने टाइम की बात हो रही है, T टाइम में. T is equals to कैपिटल T टाइम, so H is equals to I square effective R कैपिटल T. ये हो गया इक्वेशन 2. नाउ कंपेयर दिस, कंपेयरिंग दिस एंड दिस, हीट मस्ट बी इक्वल. जब हीट इक्वल है तो H is equals to H for both. So I square effective
आर कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 0 to t I square r dt. So this is actually the mean square value. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर है और उसका ये वैल्यू, अब देखिए अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, इफेक्टिव स्क्वायर आर कर दें, या आर को भी इधर डिवाइड में ले आते हैं, टी आर 0 to t आई स्क्वायर आर डी टी, आर कैंसल्ड आउट हो गया, ये बचता है आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/t 0 to कैपिटल टी आई स्क्वायर आर डी टी। देखिए जब किसी इस तरह के एक्सप्रेशन में हम कैलकुलेट करते हैं, आई स्क्वायर आर नहीं है, आर हट गया, आर कैंसिल आउट, आई स्क्वायर डी टी फॉर टाइम टी और 0 to t, यानी समेशन कर रहे हैं 0 से t तक और टोटल t टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन कैसा है, एक मीन निकाल रहा है। जैसे हम 1 + 2 + 3 n नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ को जोड़ते हैं और उसको टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ n हैं तो उससे डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स तक जोड़ते हैं और n से डिवाइड करते हैं, तो ये मीन कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे 0 से t टाइम तक जोड़ रहे हैं, t टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मीन कहलाएगा किसका, आई स्क्वायर का मीन, आई स्क्वायर का मीन। यानी हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ए सी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। इट इज़ मीन ऑफ द स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर्स का मीन है ना, स्क्वायर 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 अलग अलग वैल्यू आई की रखते जाएगी, जुड़ता जाएगा। स्क्वायर्स ऑफ दी किसका, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ ए सी ओवर वन कंप्लीट cycle. So this is I effective will be, take root both side, it is root over of 1/t integral 0 to t I square dt. Alright, so this is the expression. Now it is the root of mean of square of instantaneous current, root mean square. So it can be written as I effective is equals to I RMS. This name is also given I RMS, and it is nothing but the same value 1/t 0 to t I square dt. यानी हम करंट इंस्टेंटेनियस करंट I का पहले स्क्वायर कर रहे हैं, फिर मीन ले रहे हैं, फिर रूट ले रहे हैं, है ना। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन। नाउ सॉल्विंग दिस, इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करना चाह रहे हैं। नाउ 0 to t I square dt, आई एम सॉल्विंग इट। 0 to t I एक इंस्टेंटेनियस करंट है, पुट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू साइन ओमेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, लिख लेते हैं I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऑलराइट, so this I square sin omega t dt. So this is also square. Now as we know, cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta. So this becomes, हमें एक साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 इधर आएगा, मतलब 2 को इधर ले जाएं, वो 1 को इधर ले जाएं, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 2 मल्टीप्लाई वाला भी इसमें डिवाइड कर दें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ये कॉस 2 थीटा है, स्क्वायर नहीं है। सो दिस बिकम्स आई नॉट स्क्वायर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, टेक इट आउटसाइड आफ्टर द इंटीग्रल, 2 0 टू t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ dt, क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं कर सकते अभी ऐसे बिना रिड्यूस किए। सो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, नाउ
अभी नहीं, पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। 0 से t, इसको डिवाइड करिए, 2 बाहर ले लिया है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। नाउ आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, नाउ दिस मच, एक बार 1 का 0 टू टी डी टी, और एक बार कॉस 2 ओमेगा 2 टी के साथ 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसको देखिए, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा टी टी, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी इंटीग्रल यही है, तो ये बन जाएगा, अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, 0 से टी, क्योंकि इसका इंटीग्रल सॉल्व किया, माइनस यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, और ये पॉजिटिव में रहेगा, देन दिस बिकम्स साइन कॉस थीटा का साइन थीटा, तो साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा, और डिवाइड करेंगे इसके डिफरेंशियल से 2 ओमेगा टी के, तो ओनली 2 ओमेगा, डिफरेंशियल ऑफ 2 ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, सो दिस बिकम्स 2 ओमेगा। ये भी डिवाइड में इस वाले इंटीग्रल के लिए आएगा, दिस बिकम्स 0 टू टी, ये करली ब्रेसेस बाहर कर लेते हैं, ये ऑलराइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ सॉल्विंग इट अगेन, it is I naught square by 2 take outside, now this becomes t minus 0 minus 1 by 2 ओमेगा। ये मैंने एक बार देखिए इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे एक बार t रखा, एक बार 0 रखा, हियर अगेन पुट 1 टाइम्स t एंड 1 टाइम्स 0, मैं रख के भी दिखा देता हूँ। 1 by 2 ओमेगा आउटसाइड है, मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, साइन 1 by 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बाई कैपिटल टी ओनली एंड माइनस साइन 0, ये हो गया एक्सप्रेशन, ऑलराइट। सो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, दिस बिकम्स टी ओनली, माइनस 1 by 2 ओमेगा, टेक आउटसाइड, साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, तो 2 2 ज़ा 4, साइन 4 पाई कैपिटल टी, नहीं ओमेगा इज इक्वल्स, ये टी की जगह और 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई तो रख दिया, 2 2 ज़ा 4 पाई डिवाइड बाई टी, और ये बाहर टी है ही, माइनस से साइन 0 0 होता है। सो दिस बिकम्स आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी माइनस, ये टी टी कैंसिल आउट, 1 by 2 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई साइन 4 पाई। साइन 4 पाई इज हाउ मच, साइन 4 पाई इज साइन 180 प्लस 180, यानी अगेन साइन 180, 180 प्लस थीटा माइनस टाइम्स ऑफ साइन 180, और साइन 90 साइन 180 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 यानी कॉस 90, यानी ओवरऑल ये बन जाएगा 0। तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2 and this is t minus 0, so it is t, so it is I naught square t by 2, hence I effective is equals to I RMS is equals to, वो वैल्यू रख दें 1 by t, और इंटीग्रल वाली वैल्यू इंटीग्रल ये सॉल्व किए, आई नॉट स्क्वायर t by 2, नाउ मल्टीप्लाई टी टी कैंसिल आउट, एंड आई नॉट स्क्वायर बाई 2 का रूट, सो आई इफेक्टिव is equals to IRMS is equals to, take I naught square root as I naught and again root 2 in denominator, so this becomes 0.707, कैसे, रूट 2 की वैल्यू रख दिया 1.414, so this becomes this multiplied by I naught, so this is the expression for RMS value of alternating current. We can write RMS value of an AC is 1 by root 2 times the I naught is what? The peak value of current,
द पीक वैल्यू, RMS वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होती है, यानी कुछ कम होती है पीक वैल्यू से। कितनी? 70% होती है, 70% ऑफ I नॉट, 70.7% ऑफ I नॉट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। नाउ कम टू द अल्टरनेटिंग EMF। जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वैसे ही अल्टरनेटिंग EMF होता है और करंट होता है, तीनों ही, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF दोनों की ही हम स्टडी करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से जनरेट हो रही है? ऑब्वियसली फ्रॉम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग EMF। सो इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी वोल्टेज that produces the same amount of heat in a given resistance as is produced by the given alternating EMF when applied to the same resistance for the same time. It is also called virtual or effective value of the alternating EMF. It is denoted by ERMS, E effective or EV. Alright, so this is the expression for EMF, alternating EMF. So how we can solve it? Similar from the previous derivation। देखिए पहले वाले डेरिवेशन में भी हीटिंग इफेक्ट को कैलकुलेट किया था, इस बार भी हीटिंग इफेक्ट को ही कैलकुलेट करना। सो इसका डेरिवेशन कैसे है? सपोज इसको मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि एकदम सिमिलर है। एन ऑल्टरनेटिंग EMF E applied to a resistance R. Alright, so if we are applying an alternating EMF having instantaneous value E naught sin ओमेगा टी, क्योंकि EMF है तो वो भी तो साइनोसॉइडल होगा। नाउ अगेन कैलकुलेटिंग, अब देखिए अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई किया, इस अल्टरनेटिंग EMF के कारण जो हीट प्रोड्यूस हुई छोटे से टाइम dt में, हीट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हमने उतने समय के लिए क्या मान लिया कि ये EMF जो है ये कांस्टेंट रहता है। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम dt will be what? Consider dH, very small quantity of heat. So it is actually I square R dt, लेकिन यहाँ तो EMF दिया है तो I की जगह E by R रखेंगे तो E square by R square हो जाएगा, 1R cancel out, so E square by R dt. So put it, E की जगह E naught sin omega t, E square sin square omega t, instantaneous value E की रख दिया, dt divided by R also. So this is the expression. Now we will use this. Let capital T be the time period of the alternating EMF, obviously the one complete cycle, then heat produced in time capital T. So H is equals to how much? dH integrated with from 0 to t, so it is 0 to t E naught square by R, वही E की वैल्यू रख दें पूरी, sin square omega t dt. Now I am going to solve it. So H is equals to, just I am writing it again, 0 to t E naught square sin square omega t here divided by R, and it is dt. Now E naught square by R is a constant, take it outside, E naught square by R. Alright, 0 to t, I am again changing this sign in cosine form, 1 minus cos 2 omega t divided by 2, and it is again dt. Now solving it, E naught square by R, directly solving it, t minus sine 2 omega t by 2 omega and 0 to t. Not putting the values of limits, it is t actually.
from first expression and this one is from second expression, 2 taken outside. So take 2 आउटसाइड, यहाँ पे जब हमने 2 बाहर ले लिया तो ये 2 यहाँ ऐसे बन जाना चाहिए. अब यहाँ देखिए क्या है, ई नॉट स्क्वायर बाई 2r, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट्स t माइनस 1/2 ओमेगा, एंड अगेन प्रीवियस जैसा था वैसे ही आप देख लीजिएगा, साइन 4 पाई माइनस साइन 0. So this becomes sin 4 pi again 0. So h is equals to e naught square by 2r. Here t minus again this becomes 0. So this is e naught square by t 2r. This is the expression for the heat produced. Now this heat produced is from alternating current. Alright. Now from the direct current, अगर डायरेक्ट करंट लगाई होती, इफ़ ई आर एम एस इज दी रूट मीन, मान लीजिए ई आर एम एस वो वैल्यू है ई एम एफ की जो सेम हीट देती है ना, जब टी टाइम के लिए जोड़ी जाए. ई आर एम एस वो वैल्यू है डायरेक्ट ई एम एफ की जो सेम हीटिंग देती है जो ये वाली दे रही है. तो ई आर एम एस इज दी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू of alternating EMF. Then amount of heat produced for the same resistance H is equals to E square RMS कैपिटल टी बाई आर, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर बाई आर रखना है तो ई स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी होता, आर आर कैंसिल आउट हो जाता है, ई स्क्वायर आर एम एस टी बाई आर, ये एक्सप्रेशन हो जाता. अब इन दोनों को केवल कंपेयर करना है. सो दिस हीट मस्ट बी इक्वल टू दिस हीट, क्योंकि ये वही आर एम एस वैल्यू है उसकी, उतना सेम ही हीट देगी. ये इक्विवेलेंट डी सी की आर एम एस वैल्यू है, मतलब हीटिंग वैल्यू है. सो ई स्क्वायर आर एम एस कैपिटल टी बाई आर इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर टी बाई 2r. सो सी आर आर कैंसिल आउट, ई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू टी अगेन कैंसिल आउट. सो इट इज ई नॉट स्क्वायर बाई 2. सो ई आर एम एस इज इक्वल्स टू, टेक रूट ई नॉट बाई रूट 2. देखिए वही एक्सप्रेशन आ गया जैसे वहाँ ई नॉट बाई रूट 2 आया था, यहाँ ई नॉट बाई रूट 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 0.707 पर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ई नॉट, पीक वैल्यू का 0.707 या 70.7%. सो दिस इज द अल्टरनेटिंग आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ. RMS value of current and EMF is 70.7% of the peak value. All right. Next topic we will see in next class. Thank you.